Hello students, we are starting CA Anchor Advanced Accounting lectures. These lectures will be available on our YouTube channel Vishnu CA Classes, 4 members only at just ₹119 per month. So I have been teaching CA Anchor and Final classes since 1990s, and over the past 30 years, more than 1000 students have qualified as CA under my guidance. So in this lecture series, we will cover full syllabus within 3 months, and new videos will be uploaded regularly. For every topic we have two videos. फर्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स विद वन वेरी गुड एग्जांपल. सो दिस एग्जांपल कवर्स पास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीए एग्जाम्स एंड फ्रॉम स्टडी मटीरियल. तो यदि आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको टोटली क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 से 4 प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स हैं हर तरह के क्वेश्चन कवर करेंगी फ्रॉम सीए पास्ट एग्जाम्स, स्टडी मटीरियल, आरपीपी, एमपीपी एंड केस सिनेरियो बुकलेट. तो पहले आपने इन क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है, ट्राई करना है, फिर आप इसके सोल्यूशन जो हैं वो क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं. यदि आप ये 3 से 4 प्रॉब्लम अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका फुल टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है. और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं पर्सनली सॉल्व करूँगा टेलीग्राम पर, डिटेल्स स्क्रीन पर अवेलेबल हैं. और यदि आप मेरे लेक्चर्स को बिगिनिंग से एंड तक अच्छी तरह कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके 70+ मार्क्स आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में विच एडवांस अकाउंटिंग. जैसे स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. तो फर्स्ट अवर स्टैंडर्ड ये AS2 which deals with valuation of inventory. So let us see what is the objective of AS2. So AS2 basically deals with valuation of inventory to be included in cost of goods sold, which is called COGS, and inventory to be disclosed as asset in the balance sheet for a particular period. So major topics in AS2 are we will discuss meaning and types of inventory. Then we will see how to determine cost of inventory. Then what are cost formula for valuation of inventory, measurement of inventory for balance sheet or P&L, and disclosures for inventory. So number 1 is meaning and types of inventory. So inventories are assets that are held for sale in ordinary course of business. इट मीन्स कुछ आपके पास स्टॉक्स हैं जो आपने होल्ड किए फॉर सेल पर्पज के लिए. फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल. सेकंड में भी अवर इन्वेंट्री आर एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज और कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल. तो कुछ इन्वेंट्रीज होती हैं जो हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन और टू प्रोवाइड सर्विसेज. For example, raw material and work in progress. So this is also inventory. Number 3 is inventories are held for maintenance supplies and consumables. कुछ होती हैं जो आपको मेंटेनेंस के लिए यूज होती हैं आपकी इन्वेंट्रीज. इट इंक्लूड्स स्टोर्स, स्पेयर्स, लूज टूल्स, नट्स एंड बोल्ट्स. So there are some items which are not included in inventory. So these are called exclusions or items not included in inventory. So inventories do not include the following items. Number 1 is WIP arising under construction contracts. It means to these items some other standards are applicable. Like WIP which is under construction contract, AS7 is applicable. Second is WIP of service providers. That is cost of providing a part of service. जैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पर अभी आपकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो जितना एक्सपेंडिचर किया है वो आपका WIP माना जाएगा. तो दिस इज कवर्ड बाय AS9 विच इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन. सो नंबर 3 इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर्स और डिबेंचर्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. सो इवन दीज आर नॉट कवर्ड बाय AS13 विच डील्स विद इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दिस इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. So these are to be valued at a lower of cost and fair value. So there is a specific rule. So therefore this is not covered by AS2 as well as AS13. So fourth one is producers inventories of livestock, agricultural and forest products, and mineral oils, ores and gases that are measured at net realizable value. तो इनके लिए भी फिक्स रूल है कि इनको अपने NRV के बेस पर वैल्यू करने हैं. तो देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड बाय AS2.
फॉर एग्जाम्पल वेयर सेल इज अश्योर्ड अंडर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ए गवर्नमेंट गारंटी। तो ये वो केसेज हैं जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है जिसके थ्रू आपको सेल प्राइस डेफिनेटली रिसीव होगा। और वेर ए होमोजीनियस मार्केट एग्जिस्ट्स एंड देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फेलियर टू सेल। So fifth one is your machinery spares, servicing equipment and standby equipment which are considered as items of property, plant and equipment as per AS 10। तो ये हम डिस्कस करेंगे AS 10 में। नेक्स्ट is determination of cost of inventory। So we are seeing that inventory are assets, therefore the costs of inventory are those costs that are expected to generate future economic benefits to the enterprise। Inventory costs mainly include three elements which are given below. Number one is purchase costs. It consists of purchase price including duties and taxes which are non-refundable. Duties and taxes may be like custom duties we have to pay, GST we have to pay, but if these are refundable, then they are not included. Only non-refundable are included. But if there are credit discounts, rebates, subsidies and duty drawbacks, so these are deducted from purchase cost। The second is conversion costs। Conversion cost is cost of converting raw material into finished product। It means the costs of conversion include costs of directly related to production, that is direct labor cost and production overheads, both fixed and variable। So variable overheads are assigned to each unit of production on the basis of actual use। It means on the basis of actual units which are produced of the production facilities। But the fixed overheads are absorbed to units of production based on normal capacity or actual production which average is higher। तो फिक्स्ड overheads हम पोर्शन करके ऑन द बेसिस ऑफ जो आपकी कैपेसिटी है नॉर्मल या फिर जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी इनमें से हायर होगी। तो बट नॉर्मल कैपेसिटी जिसे जो प्रोडक्शन अचीव ऑन एन एवरेज बेसिस है, तो जो आपको एवरेज प्रोडक्शन अचीव हो रही है ओवर द पास्ट 3 ईयर 5 ईयर्स ओवर नॉर्मल पीरियड्स और सीजन, और ये हम लिखे हैं फॉर नॉर्मल पीरियड्स। इसमें कोई अब नॉर्मल ईयर है उसको इग्नोर कर देंगे। एंड फर्दर विदाउट कंसीडरिंग लॉस ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम प्लान मेंटेनेंस है, ये कि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि इतना प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा ड्यू टू मेंटेनेंस, उसको भी हमने कंसीडर नहीं करना है नॉर्मल कैपेसिटी में। एंड अनएलोकेटेड ओवरहेड्स, अब बाई चांस हमने लिया था विच एवरी हायर, देखिए आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो कम रह जाती है तो कुछ ओवरहेड्स हैं वो आपके अनअब्जॉर्ब रह जाएंगे। तो दीगर कहा गया अनएलोकेटेड ओवरहेड्स, तो उनको फिर आपने रिकॉग्नाइज करना है एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। एक्सपेंस मीन्स दे विल बी डेबिटेड टू P&L डायरेक्टली। सो थर्ड एलिमेंट है हमारा अदर कॉस्ट्स। So other costs are incurred to bring inventory to their present location and condition, so which include mainly these expenses. Number one, costs of design, primary packing, freight, loading and unloading. It means transportation के सारे charges हैं। Interest and borrowing costs for inventory which takes substantial period to get ready for sale. For example, wine, जैसे वाइन में टाइम लगता है हमें उसको रेडी करने के लिए 1 और 2 ईयर्स, और बाई चांस आपने उस पीरियड के लिए आपने लोन लिया है उस इन्वेंट्री के लिए, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगी, मींस इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। सो थर्ड इज रॉयल्टीज और अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल्स, जैसे पेटेंट्स हैं, नो हाउ, कॉपीराइट्स हैं विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। फोर्थ वन इज स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP। फिर आते हैं लॉसेज हो जाते हैं प्रोडक्शन में, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल लॉस यूनिट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस से यूनिट्स रिड्यूस हो जाएंगे, बट जो कॉस्ट है वो फिर हमारी इन्फ्लेट हो जाती है ऑन पर यूनिट बेसिस, एंड कॉस्ट इज इन्फ्लेटेड ऑन पर यूनिट। बट अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स हैं उनको आप वैल्यू कीजिए कॉस्ट के ऊपर और उसको आपने चार्ज करना है P&L में। इतनी जो नॉर्मल के यूनिट्स हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे गुड प्रोडक्शन में। फिर आता है एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं हमारी कॉस्ट में, मींस कौन सी कॉस्ट आपने इंक्लूड नहीं करनी है। इन्वेंट्री कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड द ऑफलाइन कॉस्ट। नंबर वन इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, जो ऊपर भी मैंने बताया है। एबनॉर्मल लॉस हम डायरेक्ट P&L में चार्ज करते हैं। सेकेंड स्टोरेज कॉस्ट है फिनिश गुड्स की, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बना आता है जो फिनिश गुड्स के बाद में स्टोरेज होती है।
एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आपके इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। एक्सचेंज कोई डिफरेंस है, जैसे गेन या लॉस हो रहा है जब आप इंपोर्ट करके हैं मटेरियल, उसमें कोई फॉरेन करेंसी का गेन या लॉस है, एंड वारंटी कॉस्ट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इनके बेस पर एक कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इट इज एप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट्स एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सच कॉस्ट एज पर AS 2। तो यहाँ है इसमें हमने लेना है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट है जो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करनी है। तो इतनी सब देखते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स मेन है। परचेज कॉस्ट आएगी, कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। कन्वर्जन कॉस्ट होती है लेबर प्लस ओवरहेड एंड प्लस अदर कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। So next we have to determine how much cost of inventory is to be allocated to cost of goods sold and closing stock of inventory as on balance sheet date. So for this purpose we have different cost formula of inventory, because we know that inventories are purchased or produced in different lots and unit cost of each lot frequently differs. Therefore a suitable formula is applied to determine cost of inventory. तो नॉर्मली जो इन्वेंट्री की आइटम्स होती हैं वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर, विच आर कॉल्ड डिफरेंट लोट्स, तो उनके प्राइसेस भी डिफरेंट होंगे। उसके लिए अब आपको देखना है कि हाउ मच कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड व्हाट विल बी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलास हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो इसमें हम प्रॉपर लोट का रिकॉर्ड मेंटेन करके हैं और उसमें से कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं, कितने स्टॉक में हैं। तो इट मीन्स दैट specific costs are attributed to specific items of inventory which are not interchangeable। तो इट मीन्स स्पेसिफिक लोड की जो कॉस्ट होगी वही हमारी एलोकेट हो जाएगी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका। सो सेकेंड है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। अब देखिए आपके पास स्पेसिफिकली आपने लोड को मेंटेन नहीं किया है रिकॉर्ड को, फिर आप फीफो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। FIFO formula assumes that items of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first। तो इतनी जो पहले परचेज किए थे वो पहले सेल हो जाएंगे और जो बाद वाले परचेज हो रहे हैं वो आपके रिमेनिंग स्टॉक में रह जाएंगे। एंड द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड आर दोज मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड। इसमें जो फर्स्ट आइटम्स हैं वो पहले सेल होगी और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो आपके स्टॉक में रह जाएंगी। तो थर्ड मेथड है आपका वेटेज एवरेज मेथड है। इसमें होता है जो भी पर्टिकुलर पीरियड है बिफोर सेल जितने भी यूनिट्स आपने परचेज किए हैं उनकी हम एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड वेटेज एवरेज कॉस्ट। सो वेटेज एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग ए पीरियड एंड इन्वेंट्री वैल्यू दैट है एवरेज कॉस्ट। तो इसमें हम वेटेज एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लीजिए, समेशन ऑफ प्राइस को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी समझो इसमें वेट है हमारा, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी और उसको डिवाइड कर लीजिए टोटल क्वांटिटी से, तो ये आपका एवरेज रेट बन जाएगा। तो उसके बेस पर, इसी रेट के बेस पर हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे एंड जो क्लोजिंग स्टॉक को। सो फोर्थ मेथड है आपका रिटेल प्राइस मेथड। तो ये रिटेलर से यूज करके है नॉर्मली। सो इन रिटेल बिजनेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर परचेज्ड रैपिडली द कॉस्ट इज डिटरमिन्ड बाय रिड्यूसिंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम सेल वैल्यू। अब डिफरेंट आइटम्स आपकी परचेज हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनमें हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होती हैं, तो उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो हम सेल वैल्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देते हैं, बैलेंस हमारी रह जाती है कॉस्ट। सो वी कैन से दैट इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन विच इज इन परसेंटेज। सो फिफ्थ आपका है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। जिसमें ईयर के बिगनिंग में या जो भी पीरियड है उससे बिगनिंग में एक प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड प्राइस है। उसके बेस पर हम अपनी गुड्स को रिकॉग्नाइज करके हैं जो भी सेल हो रही है या स्टॉक में है, फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके पीरियड के एंड में जो डिफरेंस आता है जिसको कहते हैं वेरियांस, वो हम एलोकेट कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल लेवल्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो हम देखते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड के बेस पर कितनी कॉस्ट बननी चाहिए, वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगी।
and the significant variances हैं these are apportioned between cost of goods sold and stock of inventory in ratio of their units। तो जितने यूनिट्स आपने सेल करनी है या जितने स्टॉक में हैं उनकी रेशो में जो भी डिफरेंस आ रहा है आपके एक्चुअल कॉस्ट में और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट में उसको हमने उसको एलोकेट कर देना है विच इज कॉल्ड अपॉर्शनड। तो नेक्स्ट फिर आता है अब आपने कॉस्ट फार्मूला डिटर्मिन कर लिया है कि कौन सा अप्लाई करना चाहिए। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री फॉर बैलेंस शीट पर्पज। तो बेसिक रूल होता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू गेट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस CP और नेट रिलाइजेबल वैल्यू NRV and the lower amount is adopted based on principle of prudence which demands that no profit should be anticipated while all foreseeable losses in respect of each item should be recognized। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करके हैं कि इसलिए स्टॉक को वैल्यू करके हैं NRV और कॉस्ट विच एवरेज लो एंड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड NRV कैन बी मेड सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं कॉस्ट को NRV से तो आप आइटम बाय आइटम कंपेयर कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप वाइज कर सकते हैं। सो और फॉर ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड आइटम्स इतनी जो सिमिलर ग्रुप है आपका उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए टोटल NRV फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं विच एवरेज लो तो वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मानी जाएगी। सो NRV इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्काउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड ऑन सेल। तो NRV कैसे डिटर्मिन होती है जो भी सेल प्राइस है उसमें से जो आपका फर्दर एक्सपेंस होगा अभी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में या सेल करने में या कोई डिस्काउंट मिलेगा आपको या देना पड़ेगा तो वो आपने एडजस्ट कर देना है वो आपकी NRV आ जाएगी। तो एस्टिमेट्स ऑफ NRV शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल। तो जब भी आप NRV एस्टिमेट कर रहे हैं उस टाइम देखो कौन सा एविडेंस अवेलेबल है एंड इट मस्ट कंसीडर फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस और कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग इवेंट्स occurring after balance sheet as per AS4। और जो भी एडजस्टिंग इवेंट्स हैं हमारी एज पर AS4 में जो कवर होती हैं तो उसके बेस पे जो चेंज आ रहा है प्राइस में वो भी आपने एडजस्ट कर देना है वो आपकी NRV डिटर्मिन हो जाएगी। फिर आप उसको कंपेयर कीजिए अपनी कॉस्ट प्राइस से। तो हाउएवर द NRV ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड टू सेटिस्फाई फर्म और कमिटी सेल और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एग्री प्राइस। पर कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि आपने इस प्राइस पे सेल करना ही करना है प्रोडक्ट को जो हमारे स्टॉक में बढ़ा है तो उसकी NRV हम लिखे हैं जो भी हमारा एग्री प्राइस है या जो कमिटेड प्राइस है। द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड रॉ मटेरियल शैल बी मेजर्ड एज अंडर। अब देखते हैं क्या रूल्स हैं कि कैसे वैल्यू हम डिटर्मिन करेंगे। तो पहला दो केस बनते हैं। इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स को हम FG से शो कर रहे हैं इज लेस देन और इक्वल टू NRV ऑफ फिनिश गुड्स मीन्स NRV ज़्यादा है आपकी। सेकंड पॉसिबिलिटी है इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज मोर देन NRV ऑफ फिनिश गुड्स। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। फर्स्ट केस में जब आपकी CP जो है लेस है या इक्वल है देन दे आर वैल्यूड एट कॉस्ट। इसमें दोनों आ जाएंगे फिनिश गुड्स भी और WIP। फिर को आपने कॉस्ट में मेजर करने हैं बिकॉज कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू NRV। पर यदि आपकी अब कॉस्ट ज़्यादा हो गई NRV से देन विच एवरेज लोअर अब आपकी NRV कम रह गई है देन दे आर वैल्यूड एट NRV। बट रॉ मटीरियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैल्यू ऑफ रॉ मटीरियल जब आपकी फिनिश की CP लेस है NRV से या इक्वल है फिर को रॉ मटीरियल को वैल्यू कीजिए आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जब फिनिश उसकी CP ग्रेटर हो गई NRV से मीन्स फिनिश उसमें NRV पे वैल्यू कर रहे हैं तो आपने रॉ मटीरियल को वैल्यू करना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। तो इस केस में हम NRV कंसीडर नहीं करेंगे रॉ मटीरियल की बट इट विल बी वैल्यू टू रिप्लेसमेंट टू कॉस्ट। तो फाइनली फिर आता है S2 में कि डिस्क्लोजर क्या क्या देने हैं अपने इन्वेंट्री के लिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्वेंट्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है P&L और बैलेंस शीट। नंबर 1 हम शो करते हैं इसमें डिस्क्लोजर क्या नोट्स टू अकाउंट्स जो हम देते हैं आपके बैलेंस शीट। अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने यूज़ करी है इन मेजरिंग इन्वेंट्री एंड जो कॉस्ट फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं एंड नंबर 3 टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ इन्वेंट्री। ईच टाइप ऑफ इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स हैं WIP है रॉ मटीरियल है स्टोर्स एक्सेट्रा। So now let us discuss one illustration to explain concept of AS2. So data given in this illustration is, so you as a chartered accountant are required to provide advice as per AS2 in the following cases। तो आपको डिफरेंट केसेस दिए हैं तो इस एग्जांपल में 3 केसेस हमने लिए हैं तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन।
तो उसमें आपने प्रोवाइड करनी है एडवाइस एज पर AS2. So number one is HP is a leading distributor of petrol. A detailed inventory of petrol in hand is taken when the books are closed at the end of each month. At the end of month of June, the following information is available. तो आपको जून के मंथ की इन्फॉर्मेशन दी है. सेल्स हैं आपकी ₹30,40,000. जनरल ओवरहेड कॉस्ट हैं ₹4 लाख. इन्वेंट्री एट बिगिनिंग ऑफ मंथ के 10,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ ₹92 पर लीटर. परचेजिज हैं ऑन 1 जून 20,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ ₹90 पर लीटर. एंड जून 30 जिसे 10,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ ₹95. ये परचेजिज हैं आपकी. यानी कि गिवन क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 30 जून 13,000 लीटर्स. सो वी हैव टू कंप्यूट द फ्लोइंग बाय FIFO मेथड एज पर AS2. तो आपने FIFO मेथड अप्लाई करना है और आपने 3 आइटम्स कैलकुलेट करनी है. बट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 30 जून, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जून. तो सिमिलर क्वेश्चन अपीयर इन CA एग्जाम नवंबर 2000 एंड मई 2022 को डिस्कस करते हैं. देखो इसका एग्जाम्पल. तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो आपको देखा गया है HP अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल. तो नंबर 1 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 30 जून FIFO मेथड. FIFO में वो क्या है, जो फर्स्ट परचेजिंग है आपकी इनिशियल वो हमारी सेल हो जाएंगी. तो मीन्स क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा आपका जो लेटेस्ट परचेज है. तो लेटेस्ट परचेज है देखो जून 30 को 10,000 लीटर्स. बट टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है हमारा 13,000. तो 10,000 लीटर का जो स्टॉक है वो हम लेंगे फ्रॉम 30 जून. और जो रिमेनिंग 3,000 का स्टॉक रह जाएगा वो आएगा जो 1 जून को आपने परचेज की है. तो इट मीन्स अब आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी 10,000 लीटर्स. 30 जून को जो परचेज हो रही है वो स्टॉक में है, उसका प्राइस है 95. और जो 1 जून को परचेज की थी 20,000 लीटर, उसमें से हमारे पास रह गए हैं स्टॉक में 3,000 और उसका प्राइस है ₹90. सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ ₹95. दिस अमाउंटिंग 9,50,000. 3,000 एट द रेट 90 किसी 2,70,000. सो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 12,20,000. तो सेकंड आपको कैलकुलेट करना है बट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून को कैलकुलेशन कर रहे हैं COGS फॉर द मंथ ऑफ जून. उसमें आप देखिए पहले ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000 लीटर्स में है ये, उसका रेट है 92. वैल्यू आएगी 920. उसमें ऐड कर दो परचेजेज. ये 1 जून की है, ये 30 जून की परचेज है. 20,000 इंटू 90 18 लाख है. 10,000 इंटू 95 9,50,000 है. सो ओपनिंग प्लस परचेज जिसे टोटल 36,70,000 जिसे कहा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. इसमें से माइनस करके जो आपने कैलकुलेट किया था क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जून जिसे 12,20,000. बैलेंस आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS जिसे ₹24,50,000. अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जून. तो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट की. आपको सेल्स हमें मेंशन की हैं 30,40,000 पे. लेस कर लीजिए COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,50,000 और लेस कर लीजिए आप जनरल ओवरहेड्स जो हमें दिए हैं क्वेश्चन में 4 लाख. बैलेंस आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ₹1,90,000. तो अब देखते हैं सेकंड केस हमें दिया है इसी क्वेश्चन में. सोनू इज ए रिटेलर डीलिंग इन ट्वाइस ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज आइटम्स वर्थ ₹1,47,000 एंड मेड ए टोटल सेल ऑफ ₹1,54,000. तो ट्वाइस में हम डील कर रहे हैं. परचेजेज आपको दिए हैं, सेल्स दी हैं. एवरी परसेंटेज ऑफ ग्रोस मार्जिन इज 10% ऑन कॉस्ट. और जो सेल हम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% बट दिस इज ऑन कॉस्ट प्राइस. तो देखिए आप लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, उसमें प्रॉफिट ऐड कीजिए 10%, सेल प्राइस बन जाएगी 110. अब ओपनिंग स्टॉक भी आपको दिया है क्वाइस का एट कॉस्ट वाज ₹20,000. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर AS2. तो दिस क्वेश्चन केम इन CA एग्जाम नवंबर 2023. तो इसमें देखो आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू. तो डाटा है सोनू एक रिटेलर है इन क्वाइस में. तो हमने डाटा शो किया ओपनिंग स्टॉक और क्वाइस है ₹20,000 के. उसमें ऐड कर लीजिए परचेजिज है ₹1,47,000. ये टोटल बन जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 167,000. लेस कर लीजिए जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
तो 154 का हमारी सेल प्राइस है। अब आप यूनिटली मेथड अप्लाई कीजिए। इस सेल प्राइस is 110 कॉस्ट प्लस 10%, देन ओरिजिनल कॉस्ट is 100। इस सेल वैल्यू 154 का होंगे, बचेगी इस कॉस्ट 1,40,000। तो बैलेंस आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ₹27,000। नेक्स्ट वी हैव थर्ड केस इनका सेम इलस्ट्रेशन। इसमें आपको डाटा मेंशन किया है, मोहन हैड परचेज 250 चेयर्स एट ₹300 ईच, सेलिंग प्राइस होगा चेयर इज ₹400 ईच, ओइंग टू ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द होल लॉट ऑफ चेयर वाज डिटर्मिन्ड एट 70% ऑफ देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस एंड नो चेयर्स वर सोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर AS2। तो आपको कॉस्ट प्राइस ली है, सेल प्राइस ली है, पर आज उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू रह गई है 70% और कोई भी चेयर आपने सेल नहीं की है। सो वी हैव टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो सिमिलर क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2023। तो देखो इसमें कैलकुलेट करते हैं। मोहन का डाटा है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है ऑफ पर चेयर ₹300। अब इसकी कैलकुलेट कीजिए नेट रिलाइजेबल वैल्यू NRP ऑफ चेयर, किसी 400 सेलिंग प्राइस है, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू है 70%, तो जिससे कमी ₹280। और कोई भी चेयर्स आपने सेल नहीं की हैं, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हैं आपके पास 250। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वही वैल्यू क्लोजिंग को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV दोनों में से जो भी लोअर होगा, किसी की 280, तो वैल्यू आ जाएगी स्टॉक की 250 चेयर्स इंटू 280, जिस ₹70,000। तो नाउ आई एम प्रोवाइडिंग 2 मोर एग्जाम्पल्स इन PDF। तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए ये 2 एग्जाम्पल्स, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ से आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल से मैंने जितने भी करेंगे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में है, स्टडी मटीरियल के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, मॉडल टेस्ट पेपर जितने भी दिए हैं इंस्टीट्यूट ने, प्लस जो केस सिनेरियो में भी क्वेश्चन कवर किए हैं, वो सिर्फ मैंने इन 2 एग्जाम्पल में कवर कर दिए हैं। देखिए आपने ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिए तो समझो आपका पूरा AS2 जो है वो कवर हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।